Now, I am going to explain you about rest and motion. When is a body said to be at rest or in motion? A body is said to be at rest when it does not change its position with respect to its surrounding objects. कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट जब अपने सराउंडिंग्स बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, एक ही जगह पे रह जाता है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो बॉडी या ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. हाउसेस, ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल्स, statues, all are stationary. They are not moving. Therefore, they are said to be at rest. They are not in motion. Buildings, trees, statues, poles, ये सारे ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे रहता है, स्टेशनरी है. हम लोग बोल सकते हैं कि ये सारे रेस्ट में है. Even the same object can be at rest or in motion at different times. For example, when a car is stationary, it is said to be at rest. But when the car is moving, it is said to be in motion. समय के हिसाब से कोई भी एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट या मोशन में हो सकता है. जैसे कि कार अगर रुकी हुई है तो वो रेस्ट में है, लेकिन वही कार जब मूव कर रही होती है तो वो मोशन में. नाउ मोशन. We see many things moving around us. A man is walking, somebody are riding bicycles, moving dogs, a flying bird, a football rolling on the ground, etc. All these are examples of things showing motion. In all these examples, you will observe that the bodies keeping on changing their position with respect to other objects. इन सारे एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग्स के बाकी सारे ऑब्जेक्ट के कंपेयर में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है. और जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी सराउंडिंग्स के बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स के कंपेयर में और टाइम के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज करता है, तब कहा जाता है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है. An object is said to be in motion when its position changes with time and with respect to its surrounding objects. Just like that car, it starts from a stationary object A. After some time, it reaches up to B. That car changes its position with time and with respect to its surrounding object A. Therefore, it is in motion. हम लोग देख सकते हैं कि एक कार एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट A से चलना शुरू करता है और कुछ समय बाद अपना पोजीशन को चेंज करते हुए वो B तक पहुंच जाता है, यानी कि ये कार मोशन में है. In order to classify objects at rest or in motion, we choose some convenient fixed point in the immediate surroundings of the body. And this fixed point is known as reference point. कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट या मोशन में है ये समझने के लिए उसके सराउंडिंग्स में कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को फिक्स पॉइंट हम लोग चूज़ कर लेते हैं और उसे रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है. इस पिक्चर में हाउस और ट्री स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से लेंगे और कार मूव कर रहा है ए से बी तक. इन दिस एग्जाम्पल ए इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, देयरफॉर इट इज अ रेफरेंस पॉइंट. और कार रेफरेंस पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट कर रहा है और कुछ देर बाद वो मूव करते करते बी तक पहुंच रहा है, यानी कि कार मोशन में है. It must be kept in mind that any object can be considered at rest or in motion relative to some fixed reference point. The states of rest and motion are relative.
ये हमेशा दिमाग में रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसके फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से रेस्ट या मोशन में होता है और इसीलिए रेस्ट और मोशन को रिलेटिव कहा जाता है। Imagine that you are traveling in a moving train. There are many other passengers in your compartment. Is there any change in your position with respect to another passenger sitting by your side even though both of you are moving with the train? Imagine करिए कि आप में से कोई भी मूविंग ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत सारे पैसेंजर्स भी हैं। पैसेंजर्स के रेस्पेक्ट में क्या आपका पोजीशन कभी चेंज होता है मूविंग ट्रेन में? नहीं। Look at nearby trees, lampposts, houses, people and animals outside. It looks as if the trees, houses and lampposts are passing by you at a great speed. It is actually you who is moving with the moving train, not the trees, houses and lampposts. ट्रेन के बाहर देखने से ये फील होगा कि ट्रीज़, हाउसेस, लैम्प पोस्ट ये सारे ऑब्जेक्ट्स बहुत स्पीड में मूव कर रहा है, बट एक्चुअली आप खुद मूव कर रहे होते हैं मूविंग ट्रेन के साथ, ना कि ट्रीज़, हाउसेस और लैम्प पोस्ट ये सारे ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं करते हैं। In the above example, you are at rest with respect to your fellow passengers. इस एग्जाम्पल में आप खुद रेस्ट में हैं अपने पैसेंजर्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, बट यू आर इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रीज, हाउसेज, पीपल्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट आउटसाइड द ट्रेन। लेकिन आप ट्रेन के बाहर ट्रीज, हाउसेज इस सारे के रेस्पेक्ट में मोशन में है,